Today, we will learn about the implementation of linear regression by automated ML on Azure. But first of all, we will recall the concept of linear regression. Linear regression होता क्या है? Linear regression, model aims to find the best fitting straight line through a set of points. This line is defined by the equation y is equal to mx plus b, where y is the dependent variable and x is the independent variable. M is the slope and b is the y-intercept. Basically, linear regression strives to show the relationship between the two variables, and the line of best fitted through the data point is a straight line. For the linear regression line, we have made the following calculations. We have followed some steps which were data preparation, means कि हमने डाटा को प्रिपेयर किया था या कैलकुलेट कंबाइन किया था, गैदर किया था. उसके बाद we have calculated the means, we have calculated the slope m, we have calculated the intercept b and the linear regression equation through the formulas. We have plotted the linear regression equation on the graph and find the best fitted line. That was the simple concept of the linear regression. But as we know that we have spent a lot of time in the calculation of the following steps. The same thing if we implement or we train the model on Azure through AutoML, the time consumption will be reduced. First of all, we will check what is AutoML. ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग होती क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे. Automated machine learning, also referred to as automated ML or AutoML, is the process of automating the time-consuming iterative tasks of machine learning model development. It allows data scientists, analysts, and developers to build ML models with the high scale efficiency and productivity, all while sustaining the model quality. कि automated machine learning basically एक ऐसा प्रोसेस है जो कि टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी टास्क्स को बहुत कम टाइम में इम्प्लीमेंट करवा देता है, कंप्लीट कर देता है. बेसिकली ये हेल्प करता है या ये डाटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट्स को ये प्रोविज़न देता है कि वो अपने मॉडल की क्वालिटी को सस्टेन रखते हुए हाईली efficient results or productive results को generate कर सके in a limited time. AutoML is widely used in the predictive analytics applications across various industries including finance, healthcare, retail and manufacturing. Means AutoML सिर्फ रिजल्ट्स को जनरेट नहीं करता, प्रिडिक्ट करता है बेसिकली, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम इसकी एप्लीकेशंस को चेक कर सकते हैं. AutoML काम कैसे करता है? ये इट हेल्प्स द यूजर टू ट्रांसफर द डाटा टू ट्रेनिंग एल्गोरिदम्स एंड ऑटोमेटिकली सर्च फॉर द बेस्ट न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर फॉर द गिवन इशू. दिस सेव्स डेटा साइंस practitioners a huge amount of time. Often tasks that would take hours to complete can be accomplished in minutes using AutoML. Means AutoML का बेसिक मकसद यूजर्स का डेटा ट्रांसफ़र करना, हेल्प यूजर ट्रांसफ़र डेटा. बेसिकली यूजर्स डेटा ट्रांसफ़र करते हैं एल्गोरिदम्स को ट्रेन करने के लिए, और फिर वो ऑटोमेटिकली बेस्ट न्यूरल नेटवर्क को सर्च करता है और उसके अकॉर्डिंगली उसके रिजल्ट्स को जनरेट करता है. इससे ना सिर्फ डेटा साइंटिस्ट या प्रैक्टिशनर्स का टाइम सेव होता है, बल्कि
रिजल्ट्स भी जो है वो हमारे हाईली सस्टेनेबल होते हैं और हाई क्वालिटी के होते हैं। ये काम कैसे करता है? AutoML takes the merged data as an input and produces predictions as output. कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ द डाटा है, वो हम एज एन इनपुट लेते हैं, डिफरेंट कॉलम्स हो सकते हैं एक डाटा सेट के अंदर, और फिर AutoML उसमें हमारे पास डिफरेंट आउटपुट्स की प्रिडिक्शन करता है और प्रिडिक्शंस के तौर पर आउटपुट्स को जनरेट करता है। It provides models that have been optimized and ready for predictions. वो डेटा प्रोवाइड करता है मॉडल को जो प्रेडिक्शंस के लिए रेडी होता है और उसको ऑप्टिमाइज भी करता है। द मेन पर्पस ऑफ AutoML टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द टाइम कंज्यूमिंग एंड रिपीटेटिव टास्क फॉर द डेटा साइंटिस्ट। कि अगेन एंड अगेन हमें एक ही प्रैक्टिस को बार बार ना करना पड़े, जिससे हमारा टाइम ज़ाया होता है। तो बेसिकली उसका मकसद AutoML का ये है कि वो डेटा साइंटिस्ट का टाइम जो है वो सेव करता है। आइडेंटिफाई द ML प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, कि जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है उसमें हम ये सजेस्ट करते हैं या ये हम खुद से जूम करते हैं कि हमने कौन सा मॉडल जो है वो उसको बेस्ट सूट करेगा। इन मॉडल्स में हमारे पास क्लासिफिकेशन है, फोरकास्टिंग है, रिग्रेशन है, एंड कंप्यूटर विजन है और NLP है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के इस लेसन में हमारा मेन जो कंसेप्ट है वो हमारा रिग्रेशन लाइन है। तो हम ये देखेंगे कि रिग्रेशन लाइन को हम कैसे थ्रू AutoML Azure के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले Azure पे अकाउंट होना हमारे लिए लाजमी है, जो कि हम बना चुके हैं और उसको हम यूज़ करेंगे। अब Azure अकाउंट को हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हमारे पास एज वी नो कि हमारे पास डिफरेंट वर्क स्पेसेस मौजूद हैं। हम अपनी वर्क स्पेस को न्यू वर्क स्पेस को खुद भी बना सकते हैं, अगेन बना सकते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट हम बना सकते हैं। वर्क स्पेस को बनाते कैसे हैं? उसके लिए हम वर्क स्पेसेस के ऑप्शंस पे आएंगे और उसमें न्यू वर्क स्पेस को हम क्रिएट कर लेंगे। न्यू वर्क स्पेस को क्रिएट जैसे करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हम अपनी वर्क स्पेस का नाम देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ ML_2 because I already made ML1, so I have given it a new name. फ्रेंडली नेम है, फ्रेंडली नेम भी हम इसको दे सकते हैं। उसके बाद हम इसके सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे। हम जो भी सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं हम उसको कर सकते हैं। यहाँ पर Azure सब्सक्रिप्शन 1 आ रहा है, मैं उसको एज इट इज़ छोड़ दूँगी। रिसोर्स ग्रुप को भी मैं एज इट इज़ छोड़ दूँगी। रीजन जो है वो मैं ईस्ट एशिया यहाँ पर आ रहा है, उसको भी मैं एज इट इज़ छोड़ दूँगी, और या इसको आप चेंज भी कर सकते हैं एंड देन हम उसको क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि वो क्रिएट कर रहा है। मैंने इसमें नाम को चेंज किया था, वो उसके लिए वो यूज़ नहीं हो पा रहा था। सो वर्क स्पेस प्रोविजनिंग इज़ इन प्रोग्रेस एंड यहाँ पर जहाँ पर ये सारा व्यू आ रहा है, यहाँ पर तमाम वर्क स्पेसेस जो होंगी वो शो हो जाएंगी। अभी तक मेरे पास वर्क स्पेस शो नहीं हुई है। जैसे ही वो शो होती है तो हम फर्दर इसके ऊपर काम करेंगे। ओके, हम अब यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे और हमारी जो न्यू वर्क स्पेस है विच इज़ मशीन लर्निंग 3 वो हमारे सामने बन चुकी है। अब हम इसको यूज़ करेंगे। मशीन लर्निंग 3 को मैंने क्लिक किया
और ये हमारे पास इसका व्यू आ गया, डैशबोर्ड ओपन ओके। अब इसके बाद हमने रिग्रेशन मॉडल को थ्रू ऑटोमेटेड एमएल इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए आपको ये राइट साइड के ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये ऑटोमेटेड एमएल का ऑप्शन ऑथरिंग के अंदर मौजूद है। मैं इसको क्लिक करूँगी तो ये मेरे सामने ऑटोमेटेड एमएल की ऑटोमेटेड एमएल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसमें न्यू ऑटोमेटेड एमएल जॉब्स का ऑप्शन आ रहा है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास डेटा सेट रेडी है या डेटा सेट मौजूद है या नहीं। उसके लिए हम डेटा सेट खुद भी बना सकते हैं अपने जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, और ऑलरेडी जो डेटा सेट्स मौजूद हैं हम उनके ऊपर भी हम डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं। मैंने डेटा सेट डाउनलोड किया था तो उसी के ऊपर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगी। उसके लिए मैंने न्यू ऑटोमेटेड एमएल जॉब्स को क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले आता है जॉब नेम, कि मैं इस जॉब को नेम क्या देना चाहती हूँ। मैं क्योंकि रिग्रेशन मॉडल इम्प्लीमेंट कर रही हूँ तो मैं इसको रिग्रेशन 2 या 3 जो भी आप नाम देना चाहें, कोई एक वैलिड नेम देना है तो मैं ये नाम इसको दे देती हूँ, ठीक है। उसके बाद अब न्यू एक्सपेरिमेंट है तो ऑटोमेटिकली उसने न्यू एक्सपेरिमेंट को क्लिक किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ रहा है। मैं इस ऑप्शन को चेंज नहीं करूँगी। वैसे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे कि कैसे करते हैं। न्यू एक्सपेरिमेंट नेम बाय डिफ़ॉल्ट यही आएगा। डिस्क्रिप्शन में आप एक्सपेरिमेंट की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि आप क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं, और आफ्टर दैट हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास सिलेक्ट टास्क टाइप आ रहा है। अब इसमें हमने यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि हमारे पास मॉडल कौन सा इम्प्लीमेंट होगा। इसमें आपको जैसा कि नज़र आ रहा है कि पहला मॉडल आपके पास क्लासिफिकेशन आ रहा है। क्लासिफिकेशन मॉडल जो है वो हम बेसिकली बाइनरी वैल्यूज़ के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास येस और नो, ट्रू फॉल्स या इस तरह का कोई डाटा हो और हमने उसमें कुछ काम करना हो तो उसके लिए हम मतलब कैटेगरीज के ऊपर बात हो रही हो तो उसके लिए हम क्लासिफिकेशन मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। जबकि रिग्रेशन मॉडल हम कंटिन्यूस वैल्यूज़ के ऊपर या कंटिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो हैं उनके ऊपर हम यूज़ करते हैं। लाइक टाइम है, उसमें हमारे पास एज है, लाइक द वेदर प्रेडिक्शन है तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई मॉडल है और तो हम उसको वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम रिग्रेशन मॉडल को यूज़ करेंगे। यहाँ से हम उसकी टाइप को सिलेक्ट करेंगे, रिग्रेशन सिलेक्ट हो गई, और अब हम इसको क्रिएट करेंगे। जैसे ही हम क्रिएट करेंगे तो हमारे पास डेटा एसेट नेम आ रहा है। डेटा एसेट नेम को हम कोई भी हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं रिग्रेशन 3 किया था, मैं उसी को ले रहे हैं। एसेट की डिस्क्रिप्शन हम देना चाहें तो दे सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है। टाइप इसकी मैंडेटरी है, इसमें टेबुलर टाइप को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसमें हम इस सिलेक्ट करने के बाद हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी टेबुलर आ रही होती है, उसको भी कर सकते हैं, और सिलेक्शन के बाद भी हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो वो हमसे डेटा सोर्स मांगेगा कि हमारे पास डेटा सोर्स कहाँ पर मौजूद है। एज़्योर स्टोरेज से भी ले सकते हैं, एसक्यूएल डेटाबेस भी ले सकते हैं, वेब फाइल्स भी हो सकती हैं, ओपन डेटा सेट भी हो सकता है जो एज़्योर के ऊपर मौजूद है। लेकिन क्योंकि मैंने फाइल को डेटा सेट को अपने पास सेव किया हुआ है तो मैं डेटा सेट जो भी न्यू क्रिएट करेंगे या आपने कहीं से सेव किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है, तो वो आप लोकल फाइल्स में जाएंगे। लोकल फाइल्स को मैंने क्लिक किया
एंड देन मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। क्रिएट न्यू डेटा, हम इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहे। स्टोरेज टाइप बेसिकली यहाँ पर हमने डिफाइन करनी है। Data store, choose a storage type and a data store to upload your data in the next step. You can also create a new data store for your data first. हमारे पास डिफरेंट स्टोर्स मौजूद हैं, हम इन्हीं को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यू लेना चाह रहे हैं तो आप न्यू डाटा स्टोर को भी अपने पास क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट न्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं अभी इसी को यूज़ कर रही हूँ और उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगी। ओके, देन वी विल अपलोड द फाइल। क्योंकि फाइल या फोल्डर जो भी आप अपलोड करना चाह रहे हैं, मेरे पास फाइल जहाँ पर मौजूद है मैं उस जगह पर जाऊंगी। मेरे पास एक फोल्डर था और उसमें मैंने वेदर हिस्ट्री के नाम से एक फाइल रखी हुई थी जिसको मैंने अपलोड करना है, राइट। ये जो डेटा सेट है ये CSV टाइप है इसकी, और इसको अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, डेटा हमारा अपलोड हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। राइट, उसके बाद इसकी कुछ सेटिंग्स आ जाएंगी। ये हमारे पास जो भी डाटा था वो शो हो गया, ठीक है। फाइल फॉर्मेट डिलिमिटेड है, हम प्लेन टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। कॉमा से डिलिमिटर है, क्योंकि CSV टाइप है तो इसलिए कॉमा सेपरेटर, ये एक मोड है कॉमा सेपरेटर है, तो इसलिए हम इसको ही एज इट इज़ रहने देंगे, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब इसमें यहाँ पर हमने ये डिसाइड करना है कि हम बेसिकली रिग्रेशन मॉडल किस कॉलम के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या नंबर ऑफ कॉलम्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास पूरे डाटा की समरी आई हुई है, कॉलम्स आए हुए हैं। इनमें से मैं ये चाह रही हूँ कि ये कुछ हैं चीज़ें, लाइक मैं विंड स्पीड के ऊपर चाह रही हूँ, उसके अलावा टेम्परेचर के ऊपर चाह रही हूँ, अपेरेंट टेम्परेचर के ऊपर चाह रही हूँ। बाकी ह्यूमिडिटी और ये जितने भी कॉलम्स हैं मैं उनके ऊपर नहीं चाह रही। समरी डेट है वो रहने देते हैं, और बेसिकली फॉर्मेट डेट, टेम्परेचर, अपेरेंट टेम्परेचर और विंड बेयरिंग के ऊपर मैं इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। नेक्स्ट कर दिया। ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई फॉर द रिव्यू, एंड देन हम इसको क्रिएट कर देंगे। जैसे ही हम इसको क्रिएट करेंगे तो ये अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देगा, एंड उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट एरिया था, डैशबोर्ड था, वो हमारे पास वापस आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज आ रहा है कि रिग्रेशन 3 डेटा एसेट्स क्रिएटेड सक्सेसफुली, इट मे टेक्स अ फ्यू सेकेंड फॉर द लिस्ट टू बी अपडेटेड। ओके जी, ये हमारे पास लिस्ट अपडेट हो चुकी है। अब हम इसको चेक करेंगे और हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास अब यहाँ पर ये हमारे पास, हम यहाँ से डाटा को व्यू भी कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स हैं जिनके ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये डेट है, टेम्परेचर है, पेरेंट टेम्परेचर है और विंड बेयरिंग है, ठीक है। इसके बाद हम इसको
यहाँ से टारगेट कॉलम को सिलेक्ट कर, हम उससे ज़्यादा भी बीच में से हम रिफाइन करेंगे, टारगेट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे कि जिसके जो हमें प्रेडिक्शंस को देगा। मैं टेम्परेचर पे करना चाह रही हूँ, टेम्परेचर को मैंने क्लिक कर दिया और इसमें आ रहा है वैलिडेट एंड टेस्ट, वैलिडेशन टाइप ऑटोमेटिक है और टेस्ट नो एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पर आता है कंप्यूट का ऑप्शन आ गया, सिलेक्ट एंड कॉन्फ़िगर द कंप्यूट रिसोर्स फॉर एग्जीक्यूटिंग योर ट्रेनिंग जॉब। सर्वरलेस है, यहाँ पर क्लस्टर्स भी यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप क्लस्टर्स करना चाहते हैं तो वो फिर आपको क्रिएट करना पड़ेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम इसको सर्वरलेस के ऊपर ही इसके ऊपर काम करेंगे। वर्चुअल मशीन टाइप CPU और GPU, इट्स अप टू यू कि आप किसके ऊपर कौन सी टाइप को सिलेक्ट करना चाह रहे हो। नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पर सॉरी, वर्चुअल मशीन टायर डेडिकेटेड या लो प्रायोरिटी, ये वाले तमाम ऑप्शंस हम एज इट इज़ रहने देंगे। वर्चुअल मशीन साइज़ को यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है। क्लासिक ट्रेनिंग का है, ट्रेनिंग ऑन लार्ज डाटा सेट है, ऑल वर्चुअल मशीन्स मौजूद हैं, इनके रेट्स भी गिवन है, स्टोरेजेस भी गिवन है। तो इनमें से आपकी जो भी अपनी चॉइस है आप उसके अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। सबमिट ट्रेनिंग जॉब, ये हमारे तमाम ऑप्शंस कंप्लीट हो गए और अब हम इस जॉब को सबमिट करवा देंगे। सबमिट करवाने के बाद ये ऑटोमेटिकली हमें जॉब्स के ऑप्शन में हमारे पास आ जाएगा द जॉब डज नॉट एग्जिस्ट और हैज़ बीन डिलीटेड, मतलब ये जॉब सबमिट हो चुकी है और फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए जा चुकी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो जॉब हमारे पास कहाँ पर मौजूद है और क्या हम उसको व्यू कर सकते हैं। तो हम दोबारा से ऑटोमेटेड ML के ऑप्शन पे आएंगे तो आपको ये नज़र आ रही होगी, हमारे पास रिग्रेशन 3 के नाम से मैंने एक जॉब जो थी वो सबमिट करवाई और ये उसकी सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, रनिंग का स्टेटस आ गया है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कुछ टाइम ले लेगा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो मेरी प्रीवियस जॉब में ऑलमोस्ट 6 आवर्स ले लिए थे। तो हम ये देखेंगे कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टास्क हम क्या देख सकते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले जॉब्स कंप्लीट की हुई हैं तो मैं वो आपको व्यू करवा देती हूँ कि बेसिकली हमारे पास रिजल्ट्स जो होंगे वो क्या जनरेट होंगे। तो मैं अपनी प्रीवियस वर्क स्पेस के ऊपर जाती हूँ और वहाँ पर ये देखती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको कि वो रिजल्ट्स हमारे पास कैसे जनरेट हुए थे। ये मेरे पास यहाँ पर ऑटो 4 के नाम से एक ग्रेजुएशन की जॉब थी, इसको मैंने क्लिक किया। ये मेरे पास जॉब कंप्लीटेड का स्टेटस, जैसे ही वो कंप्लीट होगी तो वो आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 6 आवर्स एंड 9 मिनट्स इसमें लगे और ऑटोमेटेड ML था। ये सारा जो भी डिस्क्रिप्शन ऑफ द हमारी जॉब था वो आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये तमाम अब जो रिजल्ट्स बेसिकली जो हमारे लिए मैटर करते हैं वो कैसे हम व्यू कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इनपुट्स इसकी आ रही हैं, इनपुट्स हमारे पास मौजूद है, आउटपुट्स मौजूद हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे बेस्ट मॉडल समरी गिवन है। अगर हम इसको क्लिक करेंगे एल्गोरिथम नेम आ रहा है, हाइपर पैरामीटर्स आ रहे हैं, नॉर्मलाइज रूट मीन स्क्वायर रूट आ रहा है, सैम्पलिंग 100% है। अगर मैं एल्गोरिथम नेम को क्लिक करती हूँ तो उसके अंदर मेरे पास ये तमाम एक्सप्लेनेशंस भी मौजूद हैं, एक्सप्लेनेशन रिव्यूज़ भी मौजूद हैं। जिन ये भी लोड हो रहे हैं, ये देखें।
ये इसके मौजूद है। उसके अलावा अगर हम देखें कि मैट्रिक्स में जाएं तो हमारे पास ये डिफरेंट स्कोर वेरिएंस है, एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज है। अब जैसे ही ये स्कोर जो होगा वो उसको हम देखेंगे कि जिसका स्कोर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बेस्ट फिटेड लाइन जो होगा वो जनरेट करेगा, लाइक दिस वन। ये वो वैल्यू थी, ये ट्रू वैल्यूज़ गिवन है और उसमें से जो आई वो हमारे पास ये बेस्ट फिटेड लाइन आ रही है। उसमें प्रिडिक्टेड वैल्यू भी आ रही है, लोअर बाउंड भी आ रहा है, अपर बाउंड भी आ रहा है और काउंट भी आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास हिस्टोग्राम में रेजिडुअल्स शो हुए हैं, ठीक। सो हम इसके अलावा टेस्ट रिजल्ट्स का भी प्रीव्यू कर सकते हैं। तो ये सारे रिजल्ट जो होंगे वो फर्दर हमारे यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। आउटपुट्स में ये सारा हमारी लॉग मौजूद है, ठीक। सो दिस इज़ द वे how can we implement the model as well as we can generate the results and we can save our time. Thank you.